درپیش چیلنج تھے اس کے حوالے سے اکنامک اصلاحات کی جا رہی تھی. جس طرح کے ٹیکس ریونیو کا ایشو ہے اس میں شارٹ فال آ رہا ہے. اس کے ساتھ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ اس کا مطلوبہ ہدف حاصل نہیں کیا جا سکا. ٹیکس اور ڈیوٹیز جو ہیں وہ ان میں اضافے کی وجہ سے ایکسپورٹ امپورٹس کا ایشو ہے, اس کی وجہ سے تجارتی خسارہ بڑھ رہا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے وہ تیزی سے گر رہے تھے. ان تمام چیزوں کو مینج کرنے کے لیے وزیر خزانہ کی ایک اقتصادی ٹیم جو ہے انہوں نے مختلف ممالک سے جو ہمیں جو کثیر رقم بھی موصول ہوئی ہے, لیکن جو ہمارا فنانشل گیپ ہے وہ پورا نہیں کیا جا سکا, جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. اور آئی ایم ایف کے ساتھ اب ہماری 6 سے 8 ارب ڈالر جو ہے وہ لینے کی بات چل رہی ہے پروگرام ہونے کی, اور اس کے لیے آئی ایم ایف کا جو ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ اسی مہینے کے آخر میں پاکستان آ رہا ہے, جس کے بعد باضابطہ مذاکرات جاری ہوں گے. یہ جو معاشی چیلنجز ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ اقتصادی ٹیم پر جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ برہم ہوئے اور انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہر 3 مہینے کے بعد جو ایک پرفارمنس رپورٹ جو وزیر اعظم کو پیش کی جاتی ہے اس میں بھی مختلف وزارتوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ان میں ان وزارتوں کی کارکردگی جو ہے وہ مایوس کن رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو کابینہ میں جو تبدیلی کے لیے کی طرف جانا پڑ رہا ہے, اور جو معیشت کے حوالے سے ابھی مزید جو اقدامات کیے جانے ہیں اس پر بھی جو بہت ساری جو لابیز ہیں اور جو بہت سارے لوگ ہیں انٹرنل پارٹی میں, وہ چاہتے ہیں کہ جو وزارتیں ہیں وہ چینج کی جائیں. جی ٹھیک ہے ریاض, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت ماہر معاشیات ڈاکٹر کیس نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں ایک وزیر بدلنے سے پاکستان کی معیشت کتنی حد تک بہتر ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ وہ ان کی وزارت کو تبدیل کر دیں, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب میں کوئی وزارت نہیں لوں گا. تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ایک وزارت کا عہدہ دوسرے وزیر کو دے دینے سے پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب جائے گی؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ جی وزیر بدلنے سے معیشت بہتر ہوتی ہے. پالیسی دینے سے معیشت بہتر ہوتی ہے, اور شاید اسد عمر صاحب جو وزیر اعظم صاحب یا ان کے اور لوگ پالیسی چاہتے تھے شاید یہ نہیں مان رہے ہوں گے. جب تک انڈسٹریل پالیسی نہیں آئے گی, جب تک پرائیویٹ سیکٹر کو مراتے نہیں ملیں گی, تو شاید معیشت بہتر نہیں ہوگی. ایکچولی تو ویلیو ایڈ کرنا ہے ملک میں, اور اصل میں تو میرا خیال ہے کہ آپ میڈیا کے لوگوں کا زیادہ پریشر تھا کہ اسد عمر کو بدلیں, ورنہ تو جا کے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ڈائلاگ بھی کر کے آئے ہیں, اور شاید کوئی ایسی شرطیں بھی شاید انہوں نے مان لی ہوں جو وزیر اعظم صاحب نہیں چاہتے ہوں. بٹ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک آدمی کے بدلنے سے معیشت نہیں بدلا کرتی, اور کام انڈسٹری لگنے سے, ویلیو ایڈ کرنے سے, ایکسپورٹ کرنے سے معیشت بدلتی ہے. تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سمجھتے کیا ہیں کہ ابھی تک کون کون سی ناکامی درپیش رہی ہے اسد عمر کے ہوتے ہوئے پاکستان کی معیشت کو, اور کون کون سے چیلنجز مزید درپیش ہیں ہمیں؟ دیکھیں جی, 2-3-4 چیزیں بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہیں. ایک تو انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیے گئے, انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. دوسری طرف آپ انویسٹمنٹ چاہتے ہیں, اور آپ نے جو تھے ایکسپورٹیبل آئٹمز اور را مٹیریل کی امپورٹ پہ آپ نے بہت سارے ٹیکس کم کیے, جس کی وجہ سے خیال تھا کہ معیشت ٹھیک ہوگی, وہ بھی ابھی تک نہیں ہوئی. تیسری طرف غربت کے خاتمے کے اوپر کوئی ایسی پالیسی نہیں آئی. جو پالیسی پرائم منسٹر نے اناؤنس بھی کی ہے اس کو ابھی ٹائم چاہیے. تو جو آپ کے تھے فائنانس منسٹر عمر صاحب, انہوں نے ابھی تک شاید کلیئرٹی ہی نہیں دی تھی کہ معیشت کن شعبوں میں جائے گی. وہ سارا اپنا انحصار آئی ایم ایف کے اوپر ڈالنا چاہ رہے تھے. مگر آپ کو یاد رہے کہ اب پرائم منسٹر 25 کو چین جا رہے ہیں, اور شاید چین اور امریکہ کے اندر جو کے درمیان جو ہم پھنسے ہوئے ہیں, وہاں اسد عمر کو ریزائن کرنا پڑا ہو. وہ ان دونوں میں سے ایک سائیڈ لی ہوگی انہوں نے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ ماہر معاشیات ہیں, آپ کی گہری نظر ہے اس فیلڈ میں, تو کیا سمجھتے ہیں فوری طور پر ایسے کون سے اقدامات کیے جائیں جس سے پاکستانی معیشت مزید آگے بڑھنے کی بجائے کم سے کم مستحکم تو ہو؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو انڈائریکٹ ٹیکسز کم کر دینے چاہیے تاکہ مہنگائی کم ہو.
मैं ये समझता हूँ कि आपको बड़ी फौरन तरीके से जो गवर्नमेंट के करंट अकाउंट्स हैं उनमें कमी आनी चाहिए। आपको जो कर्जे हैं पुराने उस पर मैरिटोरियम लाना चाहिए कि 5 साल या 10 साल के लिए हम अभी नहीं देंगे, ताकि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफिसिट है वो भी कम हो और ये जो हमारा फिस्कल डिफिसिट है वो भी कम हो। मैं ये समझता हूँ कि डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा कर देने चाहिए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर देना चाहिए। फिर जो है गवर्नमेंट को अपनी इंटरवेंशन भी तो करनी चाहिए इकोनॉमी में। गवर्नमेंट टेक्निकली स्पीकिंग कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट का रोल है कि प्रोटेक्ट करे उन लोगों को जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और रोल है कि इन्वेस्टर को आप वो मराते दें, वो पॉलिसी साथ लेके आए जिस पे फिर आपको पता हो कि किन किन नए शोबों में इन्वेस्टमेंट करनी है और किन किन मुल्कों में आपने एक्सपोर्ट करनी है, ताकि आपका जो डिफिसिट है ट्रेड डिफिसिट भी कम हो सके अगले कुछ माह में, और आपका जो है फिस्कल डिफिसिट भी कम हो जाए, तो इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो जाएगी। रुपया जो डॉलर के खिलाफ नीचे गिरता है वो भी स्टेबल हो। जी, तो डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं अब जो भी वजीर आए उसमें कौन सी ऐसी खसूसियात होनी चाहिए वो फौरी तौर पर इस चीज़ को समझ ले कि पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा रही है और उसको किस तरफ को लेकर जाना चाहिए? ये ख्याल है जी कि फाइनेंसिस नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, ही उसको समझ आएगी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वैल्यू एडिशन क्या है और रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाता है। ये इकोनॉमिस्ट कर सकता है शायद, और वो भी डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट, जिसको ये जो ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज हैं वो भी समझ आए कि कब बारिश आती है, कब उससे फसलों को नुकसान होता है। दरपेश चैलेंज थे उसके हवाले से इकनॉमिक इस्लाहात की जा रही थी। जिस तरह के टैक्स रेवेन्यू का इशू है उसमें शॉर्टफॉल आ रहा है, इसके साथ जीडीपी ग्रोथ जो है वो उसका मतलूबा हदफ हासिल नहीं किया जा सका। टैक्स और ड्यूटीज जो हैं वो उनमें इजाफे की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स का इशू है, उसकी वजह से तिजारती खसारा बढ़ रहा था, और इसके साथ साथ ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो तेजी से गिर रहे थे। इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए वज़ीर ख़जाना की एक इक़्तिसादी टीम जो है उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से जो हमें जो कसीर रकम भी मौसूल हुई है, लेकिन जो हमारा फिनंशियल गैप है वो पूरा नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से IMF के पास जाना पड़ा, और IMF के साथ अब हमारी 6 से 8 अरब डॉलर जो है वो लेने की बात चल रही है प्रोग्राम होने की, और इसके लिए IMF का जो एक डेलीगेशन जो है वो इसी महीने के आखिर में पाकिस्तान आ रहा है, जिसके बाद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात जारी होंगे। ये जो मुआशी चैलेंजेस है इसकी वजह से जो है वो इक़्तिसादी टीम पर जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो बरहम हुए और उन्होंने नापसंदीदगी का इज़हार किया। इसके साथ साथ जो हर 3 महीने के बाद जो एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो वज़ीर आज़म को पेश की जाती है उसमें भी मुख्तलिफ वजारतों की निशानदेही की गई है कि उनमें उन वजारतों की कारकर्दगी जो है वो मायूस कन रही है। यही वजह है कि उनको काबीना में जो तब्दीली के लिए की तरफ जाना पड़ रहा है, और जो मईशत के हवाले से अभी मजीद जो इकदाम किए जाने हैं उस पर भी जो बहुत सारी जो लॉबीज हैं और जो बहुत सारे लोग हैं इंटरनल पार्टी में, वो चाहते हैं कि जो वजारतें हैं वो चेंज की जाए। जी ठीक है, रियाज आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त माहिर मुआशियात डॉक्टर कैस ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं एक वजीर बदलने से पाकिस्तान की मईशत कितनी हद तक बेहतर हो सकती है? जैसे कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की जानिब से ट्वीट किया गया है कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि वो उनकी वजारत को तब्दील कर दें, और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अब मैं कोई वजारत नहीं लूँगा। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या एक वजारत का ओहदा दूसरे वजीर को दे देने से पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब जाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जी वजीर बदलने से मईशत बेहतर होती है, पॉलिसी देने से मईशत बेहतर होती है। और शायद असद उमर साहब जो वजीर आज़म साहब या उनके और लोग पॉलिसी चाहते थे शायद ये नहीं मान रहे होंगे। जब तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आएगी, जब तक प्राइवेट सेक्टर को मराते नहीं मिलेंगी, तो शायद मईशत बेहतर नहीं होगी। एक्चुअली तो वैल्यू ऐड करना है मुल्क में, और असल में तो मेरा ख्याल है कि आप मीडिया के लोगों का ज़्यादा प्रेशर था कि असद उमर को बदलें, वरना तो जाके IMF के साथ वो डायलॉग भी करके आए हैं, और शायद कोई ऐसी शर्तें भी शायद उन्होंने मान ली हों जो वज़ीर आज़म साहब नहीं चाहते हों। बट जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि एक आदमी के बदलने से मईशत नहीं बदला करती, और काम
इंडस्ट्री लगने से, वैल्यू ऐड करने से, एक्सपोर्ट करने से मैशत बदलती है। तो ठीक है डॉक्टर साहब, आप समझते क्या हैं कि अभी तक कौन कौन सी नाकामी दरपेश रही है असद उमर के होते हुए पाकिस्तान की मईशत को, और कौन कौन से चैलेंजेस मजीद दरपेश है हमें? देखें जी, 2-3-4 चीजें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। दूसरी तरफ आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और आपने जो थे एक्सपोर्टेबल आइटम्स और रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पे आपने बहुत सारे टैक्स कम किए, जिसकी वजह से ख्याल था कि मईशत ठीक होगी, वो भी अभी तक नहीं हुई। तीसरी तरफ गुर्बत के खात्मे के ऊपर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई। जो पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस भी की है उसको अभी टाइम चाहिए। तो जो आपके थे फाइनेंस मिनिस्टर उमर साहब, उन्होंने अभी तक शायद क्लैरिटी ही नहीं दी थी कि मईशत किन किन शोबों में जाएगी। वो सारा अपना इंतजार IMF के ऊपर डालना चाह रहे थे। मगर आपको याद रहे कि अब प्राइम मिनिस्टर 25 को चीन जा रहे हैं, और शायद चीन और अमेरिका के अंदर के दरमियान जो हम फंसे हुए हैं, वहाँ असद उमर को रिजाइन करना पड़ा हो। वो उन दोनों में से एक साइड ली होगी उन्होंने। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप माहिर मुआशियात हैं, आपकी गहरी नज़र है इस फील्ड में, तो क्या समझते हैं फौरी तौर पर ऐसे कौन से इकदाम किए जाए जिससे पाकिस्तानी मईशत मजीद आगे बढ़ने की बजाय कम से कम मुस्तहकम तो हो? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर देने चाहिए ताकि महंगाई कम हो। मैं ये समझता हूँ कि आपको अब बड़ी फौरन तरीके से जो गवर्नमेंट के करंट अकाउंट्स हैं उनमें कमी आनी चाहिए। आपको जो कर्जे हैं पुराने, उस पर मैरिटोरियम लाना चाहिए कि 5 साल या 10 साल के लिए हम अभी नहीं देंगे, ताकि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफिसिट है वो भी कम हो, और ये जो हमारा फिस्कल डिफिसिट है वो भी कम हो। मैं ये समझता हूँ कि डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा कर देने चाहिए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर देना चाहिए। फिर जो है गवर्नमेंट को अपनी इंटरवेंशन भी तो करनी चाहिए इकोनॉमी में। गवर्नमेंट टेक्निकली स्पीकिंग कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट का रोल है कि प्रोटेक्ट करे उन लोगों को जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और रोल है कि इन्वेस्टर को आप वो मराते दें, वो पॉलिसी साथ लेके आए जिससे फिर आपको पता हो कि किन किन नए शोबों में इन्वेस्टमेंट करनी है और किन किन मुल्कों में आपने एक्सपोर्ट करनी है, ताकि आपका जो डिफिसिट है, ट्रेड डिफिसिट भी कम हो सके अगले कुछ माह में, और आपका जो है फिस्कल डिफिसिट भी कम हो जाए, तो इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो जाएगी। रुपया जो डॉलर के खिलाफ नीचे गिरता है वो भी स्टेबल हो। जी, तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं अब जो भी वजीर आए उसमें कौन सी ऐसी खसूसियात होनी चाहिए वो फौरी तौर पर इस चीज़ को समझ ले कि पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा रही है और उसको किस तरफ को लेकर जाना चाहिए? ये ख्याल है जी कि फाइनेंसिस नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। ही उसको समझ आएगी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वैल्यू एडिशन क्या है, और रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाता है। ये इकोनॉमिस्ट कर सकता है शायद, और वो भी डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट, जिसको ये जो ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज हैं वो भी समझ आए कि कब बारिश आती है, कब उससे फसलों को नुकसान होता है।